السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ پیش خدمت ہے اینک والا جن۔ نستور کا سر کٹ گیا۔ بدروحوں کی چیخیں قریب آ رہی تھی۔ چڑیلوں کے قبرستان میں چیخو پکار مچ گئی تھی۔ نستور غیبی حالت میں ایک چڑیل کی قبر کے چبوترے کے پیچھے چھپا ان خوفناک چیخوں کی آواز سن رہا تھا۔ کامئی ناگن اس کی کلائی سے لپٹی ہوئی تھی۔ کامئی نے کہا، نستور، سامری کو ہمارا پتہ چل گیا ہے۔ یہ سامری جادوگر کی بھیجی ہوئی بدروحیں ہیں۔ یہاں سے بھاگ چلو۔ نستور اٹھ کر جلدی سے اوپر کو اچھلا اور ہوا میں اوپر کو غوطہ لگا گیا۔ عین اسی وقت ایک چڑیل کی قبر پر پڑی ہوئی کالی کھوپڑی اٹھی اور نستور کے پیچھے لگ گئی۔ نستور نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ نستور سامری جادوگر کے تاریک سیارے کی اندھیری فضا میں اڑتا چلا جا رہا تھا۔ چڑیل کی کالی کھوپڑی اس کے پیچھے پیچھے ہوا میں اڑتی چلی آ رہی تھی۔ کھوپڑی کے پیچھے سامری کی بھیجی ہوئی بدروحیں چیخیں مارتی اڑتی چلی آ رہی تھیں۔ کامئی ناگن نے کہا، نستور، میں پھنکار مار کر تمہاری رفتار تیز کرتی ہوں۔ اور نستور کے اڑنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ ایک پل میں تاریک اندھیری چٹانوں کے اوپر سے گزر کر کافی دور نکل گیا۔ بدروحیں پیچھے رہ گئی تھی، مگر چڑیل کی کالی کھوپڑی اسی طرح پیچھے اڑتی چلی آ رہی تھی۔ نستور نے کامئی سے کہا، یہ کھوپڑی کی بلا ہمارے پیچھے ابھی تک لگی ہوئی ہے کامئی۔ کامئی ناگن نے پیچھے گردن موڑ کر دیکھا۔ کالی کھوپڑی ہوا میں کافی تیز اڑتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے نستور سے کہا، نستور، یہاں کے بھوت اور بدروحیں ہمیں غیبی حالت میں بھی دیکھ لیتی ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس چڑیل کی کھوپڑی ہمیں دیکھ رہی ہے جبکہ تم غائب ہو کر اڑ رہے ہو۔ نستور نے کہا، کامئی، کوئی تدبیر سوچو، کھوپڑی ہمارے بہت قریب آ گئی ہے۔ کامئی ناگن کو کھوپڑی کی صرف چیخیں سنائی دینے لگی تھی۔ اس کی نظر نیچے پڑی۔ رات کے اندھیرے میں بھی چونکہ سانپ اور ناگنیں دیکھ لیتی ہیں، اس لیے کامئی ناگن نے بھی نیچے ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت دیکھ لی جو کسی پرانے قلعے کا کھنڈر معلوم ہو رہی تھی۔ کامئی ناگن نے نستور سے کہا، جلدی سے نیچے اتر آؤ اس کھنڈر میں۔ نستور نے ایک دم غوطہ لگایا اور نیچے ویران کھنڈر کی ڈیوڑی میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی چڑیل کی کھوپڑی نے بھی غوطہ لگا دیا، مگر کھوپڑی غوطہ لگاتے ہی غائب ہو گئی۔ کامئی ناگن نے کھوپڑی کو غائب ہوتے دیکھا تو نستور سے کہا، کھوپڑی غائب ہو گئی ہے نستور، ایسا لگتا ہے کہ ہم سامری کی جادو نگری کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں۔ نستور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بھیانک کہکہے کی آواز سنائی دی۔ کامئی بولی، کھنڈر کے اندر آ جاؤ، چڑیل کی کھوپڑی ابھی یہی ہے۔ نستور غیبی حالت میں ہی کھنڈر کے اندر گھس گیا۔ کھنڈر کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھی، اندر بڑا گہرا اندھیرا تھا، مگر نستور اور کامئی ناگن کو سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ فرش پر بڑے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے، کئی جگہوں پر بڑے بڑے ستون بھی ٹوٹے پڑے تھے۔ دونوں ایک جگہ چھپ گئے۔ نستور کہنے لگا، میرا خیال ہے ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہاں خطرہ ہے۔ کامئی ناگن نے کہا، فضا میں چڑیل کی کھوپڑی موجود ہے، اس کا جادو ہم پر چل سکتا ہے، ہمیں کچھ دیر اسی جگہ چھپے رہنا چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھوپڑی کے کہکہے کی آواز آ جاتی، مگر یہ آواز ان سے دور تھی۔ کامئی بولی، چڑیل کی کھوپڑی کسی وجہ سے اس کھنڈر میں نہیں آ سکتی، ہم یہاں محفوظ ہیں۔ نستور بولا، مگر ہم کب تک یہاں پڑے رہ سکتے ہیں؟ مجھے اپنا سلیمانی راکٹ بھی تلاش کرنا ہے، جو ضرور سامری نے اپنے محل کے کسی خفیہ تہہ خانے میں چھپایا ہوگا۔ کامئی ناگن بولی، ہم سلیمانی راکٹ کی تلاش میں ہی یہاں آئے ہیں، مگر ابھی باہر خطرہ ہے، ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ نستور اور کامئی ناگن واقعی سامری کی جادو نگری کی حدود سے کافی باہر نکل آئے تھے۔ یہاں وہ تھوڑے بہت محفوظ ضرور تھے، مگر زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ چڑیل کی کھوپڑی واپس اڑ گئی۔ وہ سیدھی سامری کے دربار میں پہنچی اور اسے بتایا، اے سامری دیوتا، تمہارے نستور جن اور سانپ، جو اصل میں ایک ناگن ہے، خونی کھنڈر میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ سامری سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ خونی کھنڈر تک اس کے جادو کا زیادہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ انسانوں کی دنیا سے جادوگر ہامون اور چڑیل بلبتوڑی کو بلایا جائے۔ ایک بدروح فوراً انسانوں کی دنیا کی طرف اڑ گئی۔ جادوگر ہامون اور بلبتوڑی چڑیل اپنے غار میں ایک الو اور دو چمگادڑوں کو کڑاہی میں پکاتے ہوئے کوئی طلسم کر رہے تھے کہ بدروح نے آ کر کہا، جادوگر ہامون اور بلبتوڑی، تجھے جادو نگری کے بادشاہ سامری نے یاد کیا ہے، جلدی چلو۔ جادوگر ہامون نے پوچھا، اے بدروح، کیا بات ہے؟ اس وقت سامری نے ہمیں کیوں طلب کیا ہے؟ بلبتوڑی چڑیل نے گھوڑے کی طرح ہنہناتے ہوئے کہا، کہیں سامری ہمارے پکوڑے بنا کر تو نہیں کھا جائے گا؟ بدروح نے کہا، یہ تمہیں وہاں چل کر معلوم ہوگا، جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ جادوگر ہامون اور بلبتوڑی چڑیل اسی وقت ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر غائب ہو گئے۔ جب وہ سامری کے دربار میں پہنچے تو سامری تخت پر پریشان بیٹھا تھا۔ جادوگر ہامون اور بلبتوڑی چڑیل نے جھک کر آداب کیا۔ جادوگر ہامون نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سامری جی، آپ کا اقبال بلند ہو، ہمیں کس لیے بلایا گیا ہے؟ سامری نے غضبناک ہو کر کہا، ہامون، ہمارا دشمن نستور کسی ناگن کی مدد سے ہماری دنیا میں ہمارے سیارے پر پہنچ چکا ہے۔ جادوگر ہامون نے گردن اونچی کر کے کہا، میرے آقا، میں ابھی اس کو گردن سے پکڑ کر آپ کے دربار میں لاتا ہوں۔
बिल बतौड़ी ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ सामरी जी, मैं भी इसको गर्दन से दबोच लूंगी। सामरी ने कहा, नस्तूर अपनी दोस्त नागिन के साथ खूनी खंडर में छुपा हुआ है। तुम जानते हो कि खूनी खंडर में हमारा पूरा जादू नहीं चलता, लेकिन अगर हम तुम्हें एक खास मंत्र बता दें तो तुम वहाँ जाकर जादू चला सकते हो। हामून जादूगर खुश होकर बोला, सामरी जी, मुझे जरूर अपना खास मंत्र बताएं। मैं अभी खूनी खंडर में जाकर नस्तूर और नागिन को पकड़ता हूँ। सामरी ने कहा, इन्हें पकड़ना नहीं है, बल्कि नस्तूर और इसकी दोस्त नागिन दोनों के सर उतार कर मेरे पास लाने हैं। अगर तुम नस्तूर और इसकी दोस्त नागिन के सर काट कर मेरे पास ना लाए तो मैं तुम दोनों के सर काट कर महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। जादूगर हामून और बिलबतौड़ी चुड़ैल खौफ के मारे कांपने लगे। इतना तो जादूगर हामून जानता था कि सामरी का हुक्म अटल है। अब या तो इसे नस्तूर और इसकी दोस्त नागिन की गर्दनें काट कर लानी होगी या अपनी गर्दन कटवानी होगी। इसके सामने एक ही रास्ता था कि अपनी जान पर खेलकर नस्तूर और नागिन के सर काट कर लाए और अपनी और बिलबतौड़ी चुड़ैल की जान बचा ले। इसने कहा, सामरी जी, मुझे अपनी खास ताकत अता करे, मैं अभी खूनी खंडर को जाता हूँ। सामरी बड़ा खुश हुआ। शाबाश, तुम मेरे बड़े वफादार जादूगर हो। सुनो, मैं तुम्हें खास मंत्र बताता हूँ। इसी मंत्र के याद करने से तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे तिलिस्म में 10,000 गुना ज्यादा ताकत आ जाएगी। खूनी खंडर की दुश्मन बदरूहें तुम्हारे जादू का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इसके बाद सामरी जादूगर ने जादूगर हामून को अपने पास बुलाया और इसके कान में एक खास मंत्र पढ़कर फूंका। जादूगर हामून को ऐसा लगा जैसे इसके जिस्म में किसी ने गर्म भाप दाखिल कर दी हो। वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करने लगा। सामरी ने कहा, हामून, अब तुम खूनी खंडर में जाओ। हमारा दुश्मन नस्तूर और इसकी साथी नागिन वहाँ छुपे हुए हैं। जाकर इन दोनों की गर्दनें काटकर इनके सर हमारी खिदमत में लाकर पेश करो, ताकि हम सुलेमानी लॉकेट चोरी होने के खतरे से हमेशा के लिए महफूज हो जाएं। बिलबतौड़ी चुड़ैल ने कहा, सामरी जी, क्या मैं भी हामून के साथ जाऊं? सामरी ने गुस्से में कहा, नहीं, तुम हमारे महल में ही रहोगी। खंडर में सिर्फ हामून जाएगा। जाओ हामून। हामून जादूगर ने झुककर ताजीम की और कहा, मेरे आका, मैं दोनों के सर काटकर अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये कहा और जादूगर हामून गायब हो गया। जादूगर हामून सामरी की जादू नगरी का ही रहने वाला था। इसे मालूम था कि खूनी खंडर दूर वीरान पहाड़ियों के इस पार वाक़या है। वो आन की आन में वहाँ पहुँच गया। रात का अंधेरा बहुत स्याह काला था, मगर नस्तूर और कामई नागिन की तरह जादूगर हामून भी इस अंधेरे में सब कुछ देख सकता था। वो गैबी हालत में था। जो ही जादूगर खूनी खंडर के दरवाजे पर आया, कामई नागिन को फौरन महसूस हो गया कि कोई जबरदस्त ताकत इनके इर्द गिर्द आ गई है। इसने नस्तूर से कहा, नस्तूर, दुश्मन हम तक पहुंच गया है, यहाँ से भाग चलो। नस्तूर की ताकत चूंकि खत्म हो चुकी थी, इसलिए इसे जादूगर हामून की जबरदस्त तिलिस्म की लहरें महसूस ना हुई, मगर वो जानता था कि कामई नागिन की ताकत इसके अंदर मौजूद है। वो जल्दी से उठा और हवा में बुलंद होकर खंडर की छत पर आ गया। जादूगर हामून ने सामरी के मंत्र की वजह से नस्तूर को गैबी हालत में भी देख लिया था और इसे पहचान लिया था। इसने ये भी देख लिया था कि नस्तूर ने अपनी कलाई के साथ किसी सांप को लपेट रखा है। जादूगर हामून को इन दोनों के सर काटने थे। जो ही नस्तूर छत की तरफ आया, जादूगर हामून ने चीख मारकर कहा, नस्तूर, मैं जादूगर हामून हूँ। मैं सामरी के हुक्म से तुम्हारा सर और तुम्हारी दोस्त नागिन का सर काटने आया हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगे। नस्तूर ने ये सुना तो ताकत ना होने की वजह से कुछ घबरा गया। कामई नागिन भी समझ गई कि इस जादूगर के पास कोई बहुत बड़ा जबरदस्त तिलिस्म है। इस तिलिस्म की लहरें कामई के जिस्म से टकरा रही थी और वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी थी। इसने नस्तूर से कहा, नस्तूर, हवा में बुलंद हो जाओ। नस्तूर ने नकाहत के साथ कहा, कामई, मेरे पाँव जमीन ने पकड़ लिए हैं, मैं ऊपर बुलंद नहीं हो सकता। तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। नस्तूर चाहता था कि कामई नागिन की जान बच जाए। अगर इसकी मौत का वक्त आन पहुंचा है तो बेचारी कामई नागिन इसके साथ क्यों मरे? वो तो महज इसकी मदद के वास्ते इसके साथ आई थी, इसकी अपनी तो कोई गर्ज नहीं थी। नस्तूर ने जल्दी से अपने मुंह से कामई नागिन का मनका निकालकर कामई के मुंह में डाला और इसे कलाई से झटक दिया। कामई नागिन छत पर पड़ी ईंटों पर जाकर गिरी। नागिन का मोहरा मुंह से निकालते ही नस्तूर इंसानी शक्ल में आ गया। ये नस्तूर की गलती थी या इसकी नेक दिली कि वो कामई नागिन की जान बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कामई नागिन ख्वामख्वाह इसके साथ मौत के मुंह में चली जाए। ये सब कुछ एक सेकंड के अंदर अंदर हो गया। जादूगर हामून ने जो ही नस्तूर को इंसानी शक्ल में आते देखा तो चीख मारकर बोला, नस्तूर, तूने मेरा काम आसान कर दिया है, मगर याद रखो, मैं तुम्हारी दोस्त नागिन को भी नहीं छोड़ूंगा। नस्तूर ने घबराकर छत पर से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। अब इसके पास गायब होने या हवा में उड़ने की कोई ताकत नहीं थी। जादूगर हामून ने हाथ बुलंद करके एक मंत्र पढ़ा और एक तलवार इसके हाथ में आ गई। तलवार लहराता हुआ जादूगर भी नस्तूर के पीछे छत पर से कूद गया। नस्तूर अभी नीचे जमीन पर नहीं पहुंचा था कि जादूगर हामून इसके सर पर पहुंच गया। जादूगर ने पूरी ताकत से नस्तूर की गर्दन पर तलवार का वार किया। नस्तूर की गर्दन कट गई। जादूगर हामून ने नस्तूर का सर बालों से पकड़कर हाथ में लटका लिया और चीखकर बोला, मैंने नस्तूर का सर काट लिया। नस्तूर का धड़ नीचे खड्डे में जा गिरा।
जादूगर हामून ने नारा लगाकर कहा, नागिन अब मैं तेरा सर काटने आ रहा हूँ। जादूगर हामून गैबी हालत में ही गोता लगाकर छत पर इसी जगह आ गया जहाँ कामई नागिन ईंटों पर गिरी थी। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। नागिन इसे कहीं नजर ना आई। जादूगर हामून को सख्त गुस्सा आ गया। इसने सामरी के मंत्र को पढ़कर फूंक मारी और छत पर चारों तरफ आग के शोले बुलंद होने लगे। जादूगर हामून इन शोलों से बुलंद होता चला गया और चिल्लाया, नागिन ये आग तुझे जलाकर भस्म कर देगी। वो तेजी से इधर उधर गोते लगाकर नागिन को खंडर की दीवारों के साथ तलाश करने लगा। इसे यकीन था कि छत पर आग लग जाने से नागिन जान बचाकर इधर ही आई होगी, मगर नागिन इसे कहीं दिखाई ना दी। जादूगर हामून का गुस्से से खून खोलने लगा। नस्तूर का कटा हुआ सर इसके हाथ में था, मगर नागिन का सर काट कर ले जाना और सामरी के दरबार में पेश करना भी जरूरी था, वरना सामरी इसका सर काट डालता। वो पागलों की तरह इधर उधर घूमकर नागिन को तलाश करने लगा। इसने अपने और सामरी के तिलिस्म के सारे मंत्र पढ़ कर फूंक डाले। खंडर के नीचे भी आग के शोले बुलंद होने लगे। जादूगर हामून एक खास मंत्र पढ़कर आग के शोलों में दाखिल हो गया और नागिन को ढूंढने लगा, मगर ऐसा लगता था नागिन को या तो जमीन खा गई है या आसमान ने ऊपर उठा लिया है। जब नागिन को तलाश करते करते जादूगर हामून थक गया और इसके जिस्म में सामरी के मंत्र का असर भी कम होने लगा, तो वो नस्तूर का कटा हुआ सर लेकर सामरी के महल की तरफ उड़ गया। सामरी के दरबार में जाते ही जादूगर हामून ने नस्तूर का सर सामरी के हजूर पेश किया और हाथ बांधकर कहा, मेरे आका, मैं आपके दुश्मन नस्तूर का सर काट कर ले आया हूँ, मगर इसके साथ ही नागिन का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ भाग गई है। सामरी का असल दुश्मन नस्तूर ही था। नस्तूर ही से इसे खतरा था कि कहीं वो अपना सुलेमानी लॉकेट वापस उड़ा ले जाने में कामयाब ना हो जाए। नस्तूर का कटा हुआ सर देखकर सामरी अपने तख्त पर से उठ खड़ा हुआ और खुश होकर बोला, शाबाश हामून, तुमने मेरे दुश्मन का सर काटकर मुझे खुश कर दिया है। फिक्र न करो, इसकी दोस्त नागिन भी जिंदा बचकर नहीं जा सकेगी। सामरी ने नस्तूर का कटा हुआ सर बालों से पकड़कर उठा लिया और कहकहे लगाकर ऊंची आवाज में बोला, ए कोकाफ की शाह जिन्नात, आज मैंने तेरे एक ताकतवर जिन का सर काटकर तुझ पर फतह पा ली है। एक एक करके मैं जमीन पर आने वाले तेरे सारे जिन्नों के सर काटकर अपने महल की दीवारों पर सजा लूंगा और फिर तेरे मुल्क पर हमला करके तेरे मुल्क कोकाफ पर कब्जा कर लूंगा। हमारे दुश्मन नस्तूर के सर को हमारे महल के दरवाजे पर लटका दिया जाए ताकि आइंदा से कोकाफ के किसी जिन को हमारे मुल्क में दाखिल होने की जुर्रत ना हो। सामरी ने हामून जादूगर से कहा, हामून, अब तुम वापस इंसानों की दुनिया में जाओ और कोकाफ से शाह जिन्नात का भेजा हुआ कोई भी हमारा दुश्मन इंसानों की दुनिया में दाखिल हो तो इसे वहीं कत्ल कर दो और इसका सर काटकर हमारी खिदमत में पेश करो। हामून जादूगर ने खुश होकर सामरी का शुक्रिया अदा किया। वो खुश था कि नागिन का सर ना लाने पर सामरी ने इसे माफ कर दिया है और इसकी गर्दन नहीं उतारी। बिल बतौड़ी चुड़ैल हामून जादूगर के पास ही खड़ी थी। इसने डरते डरते सामरी से पूछा, मेरे आका सामरी जी, क्या मैं भी वापस जाऊंगी? सामरी ने गजबनाक होकर कहा, नहीं, तुम इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जाओगी। तुम हमारी जादू की नगरी में हमारे दुश्मन की मदद करने वाली नागिन को तलाश करोगी और इसका सर काट कर लाओगी, क्योंकि ये नागिन हमारे लिए खतरे का बाइस बन सकती है। बिल बतौड़ी चुड़ैल ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। सामरी ने कहा, तुम्हारे पास चुड़ैलों की इतनी ताकत है कि तुम नागिन को खत्म करके इसका सर काट कर ला सकती हो। जाओ और नागिन का सर काटकर हमारी खिदमत में पेश करो। याद रखो, अगर तुम नागिन का सर लाने में कामयाब ना हो सकी तो हम खुद तुम्हारा सर काट डालेंगे। बिल बतौड़ी चुड़ैल कांप उठी, हाथ बांधकर बोली, मेरे आका, आप बेफिक्र रहें, मैं भी आपकी बिल बतौड़ी चुड़ैल हूँ। वो नागिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगी। मैं आपके हुक्म से और आपके तिलिस्म की ताकत से नागिन का सर काट ही लूंगी। ये कहकर चुड़ैल बिल बतौड़ी गायब हो गई। हामून जादूगर भी गायब होकर इंसानों की दुनिया में अपने गार में वापस चला गया। नस्तूर का कटा हुआ सर सामरी के महल के दरवाजे पर लटका दिया गया। जकूटा जिन, यामाग सांप और उमरू अय्यार हवा में उड़ते हुए सामरी की जादू नगरी की तरफ चले आ रहे थे। वो अभी दूसरे आसमान में ही थे और तीनों गायबी हालत में थे, यानी गायब होकर खला में उड़ रहे थे। इनमें से किसी को मालूम नहीं था कि जादूगर हामून ने नस्तूर को कत्ल कर डाला है और इसका सर सामरी ने अपने महल के दरवाजे पर लटका दिया है। जिस वक्त हामून जादूगर ने खंडर की छत पर आग लगाई तो कामई नागिन छत पर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ खड्डे में कूद गई थी। इसी खड्डे में नस्तूर के कटे हुए सर वाली लाश भी पड़ी थी। कामई नागिन का दिल लाश को देखकर डूब सा गया। इसे नस्तूर के सर कट जाने का बहुत दुख हुआ। वह नस्तूर की लाश को वहाँ नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन इस वक्त इसे अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ी हुई थी, क्योंकि जादूगर हामून नस्तूर का कटा हुआ सर हाथ में लिए इसकी तलाश में था। वो चीख चीख कर कह रहा था, नागिन, जहाँ भी है बाहर आ जा, मैं तेरा भी सर काटूंगा। फिर हामून जादूगर ने छत से नीचे उतरकर खंडर के बाहर भी चारों तरफ तिलिस्म फूंककर आग लगा दी। कामई नागिन नस्तूर की लाश को वहीं छोड़कर खड्डे में एक तरफ को दौड़ पड़ी। इसके साथ मुश्किल ये थी कि कामई हर किस्म का रूप बदल सकती थी मगर गायब नहीं हो सकती थी।
जब हामून जादूगर इसे ढूंढता हुआ बिल्कुल इसके सर पर पहुंच गया तो कामई नागिन ने अपने देवता शीशनाग को याद किया, मुंह ऊपर करके एक हल्की सी फुनकार की आवाज निकाली और चाहा कि छोटी सी चूंटी की शक्ल इख्तियार करके जमीन के अंदर किसी सुराख में घुस जाए, मगर ये देखकर इसका दिल धड़क उठा कि वो अपनी शक्ल तब्दील ना कर सकी थी। कामई नागिन ने एक बार फिर फनकार मारकर शक्ल बदलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सकी। फौरन समझ गई कि सामरी की जादू नगरी में इसके तिलिस्म का इतना ताकत नहीं रहा कि वो अपनी शक्ल तब्दील कर सके। हामून जादूगर की आवाज करीब से करीब आ रही थी। कामई नागिन खड्डे में एक तरफ घूमी तो इसे दीवार में एक छोटा सा सुराख मिल गया। वो इस सुराख में घुस गई। सुराख आगे जाकर चौड़ा हो गया था और वहाँ गोल गोल छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। कामई नागिन इन पत्थरों में छुप गई। हामून जादूगर इसको तलाश ना कर सका। वो मायूस होकर नस्तूर का कटा हुआ सर साथ लेकर सामरी के महल की तरफ चला गया। इसके बाद जब सामरी ने बिलबतोड़ी चुड़ैल की ड्यूटी लगाई कि वो नागिन का सर काट कर लाए, तो बिलबतोड़ी चुड़ैल सामरी के महल से उड़कर सीधी खूनी खंडर में पहुंच गई। बिलबतोड़ी चुड़ैल गायब हालत में थी। इसने बड़ी खामोशी से खूनी खंडर के ऊपर एक दो चक्कर लगाए। इसे किसी भी जगह कामई नागिन नजर ना आई। इसको कामई नागिन की बू भी नहीं आ रही थी। चुड़ैलों को सांपों और इंसानों की बू नहीं आया करती, बू सिर्फ सांपों को आती है, या फिर कोकाफ का जकूटा जिन ही ऐसा जिन था जिसको अपने दोस्तों की बू आ जाती थी। जिस वक्त बिलबतोड़ी चुड़ैल खूनी खंडर के ऊपर चक्कर लगा रही थी, इस वक्त कामई नागिन खड्डे के दीवार के सुराख के अंदर पत्थरों में छुपी बैठी थी। कामई नागिन ने चुड़ैल की बू और इसके फिजा में उड़ने की हल्की हल्की बू महसूस कर ली थी और वो होशियार हो गई थी। इसे पता चल गया था कि जादूगर हामून के बाद अब सामरी की चुड़ैल बिलबतोड़ी इसका सर काटने वहाँ पहुँच गई है। कामई नागिन अपने दिल में बड़ी परेशान थी, क्योंकि इसको मालूम था कि बिलबतोड़ी चुड़ैल के मुकाबले में इसकी बाहमी ताकत बहुत कम है। इसे ऐसा लगा जैसे बिलबतोड़ी चुड़ैल खड्डे के अंदर से उड़ती हुई गुजर गई हो। कामई नागिन ने अपना सांस रोक लिया। सांप अपना सांस बड़ी देर तक रोक सकते हैं। दूसरी तरफ बिलबतोड़ी भी कोई मामूली चुड़ैल नहीं थी और सामरी की जादू नगरी में आकर इसकी तिलिस्मी ताकत दोगुनी हो गई थी। चुड़ैल बिलबतोड़ी ने बड़ी मक्कारी से काम लेते हुए बुलंद आवाज में कहा, नागिन, मैं जानती हूँ तो इसी खंडर के आसपास कहीं छुपी हुई है। एक बात याद रख, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। मैं वापस सामरी के महल में जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद सामरी से एक नया तिलिस्मी मंत्र लेकर आऊंगी और फिर तुम्हें जमीन के अंदर से भी ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर बिलबतोड़ी चुड़ैल हवा में बुलंद हुई। इसने एक कहकहा लगाया और दूर होती चली गई। ये इसकी मक्कारी थी। वो कामई नागिन पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो खूनी खंडर से चली गई है। थोड़ी दूर जाकर चुड़ैल फिजा में खामोश खड़ी हो गई, फिर हवा में आहिस्ता आहिस्ता उड़ती दूसरी तरफ खंडर से कुछ दूर एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गई। इसकी ये चाल थी कि कामई नागिन को जब ये यकीन हो जाएगा कि चुड़ैल वापस चली गई है, तो वो जहाँ कहीं भी होगी वहाँ से जरूर बाहर आ जाएगी। जो ही वो बाहर निकलेगी, चुड़ैल झपट्टा मारकर इसे दबोचेगी और फौरन सर काटकर धड़ से अलग कर देगी। चुड़ैल बिलबतोड़ी ने अपने हाथ में एक छोटी छड़ी भी छुपा रखी थी। कामई नागिन कुछ देर सुराख के अंदर सांस रोके पड़ी रही। इसने बिलबतोड़ी चुड़ैल के दूर होते कहकहों की आवाज भी सुन ली थी। जाने क्यों इसको यकीन सा हो गया कि चुड़ैल वाकई सामरी के महल वापस चली गई है। ये कामई नागिन की गलती थी, क्योंकि आदमी को अपने दुश्मन से हमेशा होशियार रहना चाहिए और इसकी एक एक चाल को गहरी नजर से देखते रहना चाहिए। कामई नागिन बहुत देर तक सुराख के अंदर ही रही। बाहर से चुड़ैल की कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसे चुड़ैल की बू भी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि चुड़ैल बिलबतोड़ी ने अय्यारी से काम लेते हुए अपने जिस्म से निकलने वाली चुड़ैलों की ऐसी बू भी एक खास मंत्र से रोक रखी थी। लेकिन चुड़ैल भी कोई अनाड़ी नहीं थी। इसके पास जादू की ताकत भी दोगुनी थी। इसने खूनी खंडर के सामने ऊंचे पत्थर पर बैठे बैठे सांस रोका और इसको कामई नागिन के बदन से निकलने वाली हरारत की लहरों का एहसास हुआ। ये लहरें बार बार चुड़ैल के जिस्म से आकर टकरा रही थी। इसने गौर करके अंदाजा लगाया कि नागिन के जिस्म से उठने वाली हरारत की लहरें एक खड्डे में से आ रही हैं। बिलबतोड़ी चुड़ैल पत्थरों पर से उठी और गैबी हालत में ही उड़ती हुई खड्डे के ऊपर पहुंच गई। इधर कामई नागिन ने भी सुराख के अंदर बैठे बैठे चुड़ैल की बू को महसूस कर लिया था। वो तेजी के साथ पीछे घूमी ताकि सुराख में से बाहर निकलकर खड्डे में जाए और वहाँ से किसी दूसरी जगह निकल भागे, मगर अब वक्त गुजर चुका था। चुड़ैल बिलबतोड़ी खड्डे में पहुंच गई थी। कामई नागिन ने जूं ही दीवार के सुराख में से सर बाहर निकाला, चुड़ैल बिलबतोड़ी ने इस पर तिलिस्म फेंका। ये तिलिस्म एक शुआ की तरह था। ये शोले की लकीर बनकर कामई नागिन के सामने आकर गिरा। नागिन तड़पकर बिल के सुराख में वापस चली गई। अब इसके पीछे भी मौत थी और सामने भी मौत थी। न बाहर निकलने का वक्त था, न आगे जाने की कोई जगह थी। आगे सुराख बंद हो गया था और दीवार आ गई थी। चुड़ैल बिलबतोड़ी सुराख के मुंह पर आ गई। इसने सुराख के साथ मुंह लगाकर जोर से सांस अंदर खींची कि कामई नागिन इसके सांस के जोर से इसके मुंह में आ जाए। कामई नागिन उछलकर सुराख की छत से चिमट गई। चुड़ैल ने दूसरी बार सांस खींचा तो सुराख के अंदर जैसे आंधी आ गई। कई छोटे बड़े पत्थर अपने आप खींचते हुए चुड़ैल के हलक में उतर गए।
चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और सुराख में अपना हाथ डाल दिया। सुराख में चुड़ैल का हाथ लंबा ही लंबा होता गया। इसके लंबे लंबे नोकीले नाखून छुरियों की तरह सुराख की दीवारों को खुरचने लगे। कामिल नागिन को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। कहते हैं सांप को जमीन जगह दे देती है। कामिल नागिन के हक में ये बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। इसने सुराख की छत से चिमटे चिमटे जोर से अपना सर दीवार की मिट्टी पर मारा तो मिट्टी नीचे गिरने लगी और वहाँ जगह बनती चली गई। कामई नागिन छत की मिट्टी में अंदर ही अंदर धंसने लगी। दीवार की मिट्टी कामई नागिन को जगह देती जा रही थी। सांप का दम कभी नहीं घुटा करता। सांप सिर्फ एक सांस खींचकर इतनी सारी ऑक्सीजन पर पूरे 6 महीने गुजार सकता है। और कामई नागिन तो पाताल के नाग शीश नाग की बेटी थी। अगरचे सामरी के तारीख खलाई सैयारे में इसकी तिलिस्मी ताकत कम रह गई थी, फिर भी इसमें आम सांप के मुकाबले में ज्यादा ताकत थी। कामई नागिन ने सांस रोक लिया था और जितनी तेजी से दीवार की मिट्टी में आगे बढ़ सकती थी बढ़ती चली जा रही थी। चुड़ैल बिलबतौड़ी के लंबे नोकीले नाखून सुराख के अंदर दीवारों को जोर जोर से कुरेद रहे थे। कामई नागिन को इनकी आवाज आ रही थी, फिर इसे चुड़ैल के चीख मारने की आवाजें आने लगी। मगर कामई नागिन जमीन में धंसती चली गई। इसके जिस्म पर मिट्टी का दबाव पड़ रहा था। इसने परवाह ना की और रेंगती गई। आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी जो पहले सख्त थी नरम पड़ने लगी, यहाँ तक कि मिट्टी भुरभुरी हो गई और कामई नागिन आसानी से इसमें से गुजरने लगी। इसे कुछ अंदाजा नहीं था कि वो किस तरफ जा रही है और आगे जाकर वो कहाँ निकल जाएगी, मगर इसके लिए अपनी जान बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसे सामरी के सैयारे में अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथी और दोस्त नस्तूर के लिए जिंदा रहना था। इसे नस्तूर की लाश को उठाकर किसी महफूज जगह पर ले जाना था। इसके कटे हुए सर को ढूंढकर इसकी लाश के साथ लाकर लगाना था, क्योंकि इसने सुन रखा था कि अगर किसी जिन भूत की मरने के बाद लाश पूरी ना हो और इसका सर इसके जिस्म के साथ ना लगाया जाए तो इस जिन की रूह एक भूत बन जाती है और क़यामत तक भटकती रहती है। कामई नागिन को अपने दोस्त नस्तूर की मौत का बहुत दुख था, मगर अब वो इसकी रूह को भूत बनकर क़यामत तक भटकते नहीं देख सकती थी। वो चाहती थी कि नस्तूर का कटा हुआ सर जहाँ कहीं भी हो वहाँ से वापस लाए। इसे नस्तूर की लाश की गर्दन के साथ लाकर धागे से ही सी दे और इसे एहतराम के साथ दफन कर दे। इसके बाद वो नस्तूर का लॉकेट तलाश करने की मुहिम पर निकल खड़ी हो। कामई नागिन ने दिल में अहद कर लिया था, अगर वो जिंदा बच गई तो सामरी के कब्जे से नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट लेकर ही वापस जाएगी। पहले जमीन भुरभुरी थी, फिर जमीन गीली हो गई। कामई नागिन को यूं लगा कि वो कीचड़ के ढेर के अंदर से गुजर रही है। वो देर तक कीचड़ भरी जमीन के अंदर से रेंगती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता कीचड़ पतला होने लगा, फिर इतना पतला हो गया कि कामई नागिन को महसूस हुआ वो गहरे पानी में से गुजर रही है। इसने ऊपर की तरफ मुंह करके तैरना शुरू किया। वो बड़ी तेजी से गहरे पानी के ऊपर आ गई। इसने डरते डरते बड़ी एहतियात से अपना सर गहरे पानी के अंदर से निकाला। क्या देखती है, रात का वक्त है, जर्द जर्द चांद निकला हुआ है। वो एक बहुत बड़े तालाब के किनारे पानी में तैर रही है। चांदनी का रंग पीला था। इस जर्द पीली चांदनी में कामई नागिन ने तालाब के दरमियान एक बहुत बड़ी चट्टान पानी से बाहर निकली हुई देखी और इस चट्टान पर एक बहुत बड़ा घना दरख्त है जिसकी शाखें सारे तालाब पर फैली हुई थी। कामई नागिन को छुपने के लिए ये जगह महफूज नजर आई। वो तालाब के पानी पर तैरती हुई चट्टान पर आ गई। पानी से निकलकर वो घने दरख्त की तरफ बढ़ी। ये दरख्त इतना बड़ा था कि इसका तना बहुत गोल दायरे में फैला हुआ था। दरख्त की टहनियों में से दरख्त की जड़ें, जिनको दरख्त की दाढ़ियां भी कहते हैं, निकलकर जमीन पर फैली हुई थी। कामई नागिन तेजी से दरख्त पर चढ़कर शाखों में एक जगह छुपकर बैठ गई। इसे कुछ पता नहीं था कि वो जमीन के अंदर ही अंदर से रेंगती हुई किस जगह पर निकल आई है। इसका दिल इतना जरूर कह रहा था वो चुड़ैल के खतरे से दूर हो गई है। कामई नागिन ने दाएं बाएं घने दरख्त की शाखों पर निगाह डाली। दरख्त की शाखें और चौड़े चौड़े पत्ते बिल्कुल साकिन थे। हवा बंद थी। चांदनी पूरी सरार थी। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक डरा देने वाला सन्नाटा तारी था। कामई नागिन को इस किस्म की खामोशी और सन्नाटा पसंद था। अब वो कुछ देर के लिए आराम से बैठकर सोच सकती थी कि नस्तूर का लॉकेट और इसका कटा हुआ सर तलाश करने के लिए इसको क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ बिलबतौड़ी चुड़ैल सख्त मायूस होकर नागिन को जगह जगह तलाश करती फिर रही थी, मगर कामई नागिन इसके हाथ ना आई। रात गहरी हो गई थी। चुड़ैल वापस सामरी के महल में आई और सामरी को हाथ जोड़कर बताया कि नागिन इस वक्त इसके हाथ से निकल गई है। मगर साथ ही चुड़ैल ने सीने पर हाथ मारकर कहा, मेरे आका, मैं वादा करती हूँ चाहे मेरी जान चली जाए, मैं नागिन को पकड़कर इसका सर काट कर ही लाऊंगी। सामरी ने नाराज होकर जरा गुस्से से कहा, बिलबतौड़ी, तू कभी आजमाइश पर पूरी नहीं उतरी। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जा और मेरे दुश्मन नस्तूर की साथी नागिन को तलाश कर, इसका सर काट कर ला, क्योंकि वो जब तक मेरे सैयारे पर मेरी जादू नगरी में जिंदा रहेगी मेरे लिए कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। बिलबतौड़ी बोली, मेरे आका सामरी,
मैं इस बार कामयाब होकर आऊंगी। मैं जब आऊंगी तो नागिन का कटा हुआ सर मेरी मुट्ठी में होगा। बिलबतौड़ी एक बार फिर कामई नागिन को ढूंढने निकल खड़ी हुई। इधर ज़कूटा, यामाग और उम्रू अय्यार सामरी के सैयारे की फिजाओं में दाखिल हो चुके थे। सामरी के सैयारे की तिलिस्मी फिजा में दाखिल होते ही इन तीनों को जबरदस्त झटके लगे और वो उड़ते उड़ते एकदम लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे। जिस तरह हवा में परवाज करते हुए जहाज के इंजन फेल हो जाएं और वो लुढ़कनियां खाने लगे। ज़कूटा जिन अपने साथियों में से सबसे ज्यादा तिलिस्मी ताकत का मालिक था। इसने जल्दी से अपने आप को संभाला और जोर से नारा लगाया, ज़ैबिनॉफ। वो हवा में नीचे जाकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। ऊपर से यामाग साम और उम्रू अय्यार गैबी हालत में ही नीचे लुढ़कते चले आ रहे थे। ये तीनों एक दूसरे को देख सकते थे। ज़कूटा ने इन दोनों को बाजू फैलाकर रोक लिया। दोनों बड़ी मुश्किल से सीधे हुए। उम्रू अय्यार ने कहा, ज़कूटा भाई, हम सामरी की तिलिस्मी दुनिया में दाखिल हो गए हैं। हमें आगे जाने की बजाय इसी जगह नीचे उतर जाना चाहिए। यामाग साम कहने लगा, मगर नीचे तो बादल ही बादल हैं। इन स्याह बादलों में बड़ी जबरदस्त बिजलियां चमक रही थी, बल्कि कड़क रही थी। बादलों की भयानक गरज दूर तक सुनाई दे रही थी। उम्रू अय्यार ने कहा, इन बादलों के नीचे सामरी का तारीख खलाई सैयारा होगा। हमने आगे परवाज की तो हम पर तिलिस्मी शोलों का हमला हो जाएगा। यामाग साम ने कहा, उम्रू अय्यार का ख्याल दुरुस्त है ज़कूटा, हमें नीचे उतरने की कोशिश करनी चाहिए। तीनों गैबी हालत में नीचे गोता लगाकर काले स्याह बादलों में दाखिल हो गए। बादलों में दाखिल होते ही इन पे धड़ाधड़ बिजलियां गिरने लगी, मगर चूंकि तीनों गैर इंसानी ताकतों के मालिक थे, इसलिए बादलों की बिजलियां इनके गैबी जिस्मों के अंदर से गुजर रही थी और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। बादलों में काला स्याह अंधेरा छाया हुआ था। बिजली चमकती थी तो इसकी चमक में भी माँ सिवाय अंधेरे के और कुछ नजर नहीं आता था। तीनों दोस्तों यानी यामाग साम, उम्रू अय्यार और ज़कूटा जिन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। यामाग साम भी इंसानी शक्ल में था, अगरचे वो गायब था क्योंकि इसका मनका ज़कूटा ने लाकर इसे दे दिया था। खुदा जाने वो कब तक काले सियाह कड़कती बिजलियों वाले बादलों में से नीचे ही नीचे गुजरते चले गए। आखिर बादल खत्म हो गए। उन्होंने नीचे देखा, सामरी का तारीख सैयारा साफ नजर आ रहा था। उम्रू बोला, मैंने कहा था ना कि सामरी का सैयारा इन बादलों के नीचे है। यामाग साम कहने लगा, हमें सैयारे की किसी महफूज जगह पर उतरना होगा। ज़कूटा बोला, सामरी ने चारों तरफ अपना तिलिस्मी जाल फैला रखा होगा। ये दुरुस्त है कि हम खुद तिलिस्मी मखलूक हैं, मगर हमारी जादू की ताकत सामरी की जादू की ताकत के मुकाबले में बहुत कम है। हमें सामरी का जादू नुकसान पहुंचा सकता है। यामाग साम कहने लगा, जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। हम नस्तूर और इसकी लॉकेट की तलाश में निकले हुए हैं। हम वापस जाने के लिए यहाँ नहीं आए। नीचे उतर चलो। तीनों दोस्त बड़ी तेजी से नीचे उतरने लगे। इन्हें बिजली के झटके लगने लगे थे। ज़कूटा बोला, ये सामरी के जादू का असर है। उम्रू अय्यार ने जल्दी से कहा, ज़कूटा खामोश रहो, हमें बोलना नहीं चाहिए। सामरी की बदरूहें हमारे आसपास उड़ रही होंगी। सामरी को खबर हो गई तो वो हमें अपने सैयारे पर उतरते ही हलाक करने की कोशिश कर देगा। यामाग साम ने उम्रू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, खामोश रहो, अब कोई ना बोले। तीनों खामोश होकर सामरी की तारीख सैयारे के करीब होते चले गए। सैयारे के वीरान बंजर पहाड़ साफ नजर आने लगे थे। फिर उन्होंने एक दरिया देखा जो बहुत चौड़ा था। इसके पानी का रंग स्याह था, जैसे तारकोल का दरिया हो। तीनों दोस्त इस दरिया के दूसरे किनारे पर उतर गए। यहाँ अजीबो गरीब किस्म के दरख्त उगे हुए थे। इन दरख्तों के तने भी बिल्कुल स्याह थे और पत्ते भी ऐसे स्याह थे जैसे तारकोल के बने हुए हों। दरिया के किनारे काले और नीले पत्थर बिखरे हुए थे। वहाँ एक तिकोना टीला था। तीनों इस टीले की तरफ देखने लगे। यामाग साम बोला, मालूम होता है इस टीले के अंदर कोई गार जरूर होगा। उम्रू कहने लगा, सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि यहाँ से सामरी के महल को कौन सा रास्ता जाता है, क्योंकि नस्तूर को अगर सामरी ने पकड़ लिया होगा तो वो सामरी के महल में ही कैद होगा और नस्तूर का लॉकेट भी महल में ही किसी जगह पर होगा। ज़कूटा बोला, ऐसा लगता है हम सामरी के सैयारे पर किसी ऐसी जगह पर उतरे हैं जहाँ इसके जादू की लहरें असर नहीं कर रही, क्योंकि खला में हमें जो तिलिस्मी लहरों के झटके लग रहे थे वो यहाँ महसूस नहीं हो रहे। दोनों दोस्तों ने ज़कूटा के ख्याल की तायीद की और कहा, वाकई ये कोई महफूज इलाका है, मगर हमें अपने साथी नस्तूर और इसके लॉकेट को तलाश करके यहाँ से आगे सामरी के महल की तरफ भी जाना है। ज़कूटा ने कहा, अक्लमंदी ये है कि हम तीनों में से 2 आदमी यहाँ ठहरें और एक आदमी आगे जाकर पहले पता करे कि सामरी का महल किधर है और वहाँ हवा में तिलिस्म का कितना असर है। अच्छा ख्याल है। उम्रू अय्यार ने कहा, मेरा ख्याल है मैं आगे जाकर जासूसी करता हूँ। ज़कूटा कहने लगा, नहीं, मेरा जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं बहरहाल एक जिन हूँ। ख्वाह सामरी की ताकत के मुकाबले में मेरी ताकत कम है, मगर फिर भी मैं इसके जादू को बर्दाश्त कर सकता हूँ। यामाग साम ने कहा, ठीक है ज़कूटा भाई, तुम ही जाओ, मगर हमें यहाँ काले स्याह दरिया के किनारे खुली जगह पर नहीं बैठना चाहिए। चलो इस टीले में चलकर देखते हैं, हो सकता है वहाँ कोई गार हो।
तीनों दोस्त टीले की तरफ आ गए। टीले में एक छोटा सा कुदरती गार बना हुआ था जिसके अंदर मकड़ियों ने जाले बना रखे थे। जकूटा ने कहा, मेरे खुदाया, मकड़ियों ने तो इतना जाला बनाया हुआ है कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यामाक सांप बोला, अभी रास्ता बन जाता है। यामाक सांप ने जोर से फुनकार मारी। इसके मुंह से शोला निकलकर मकड़ियों के जाले पर पड़ा और जाले जलकर राख हो गए। गार में रास्ता बन गया। ये एक तंग सा गार था, आगे जरा चौड़ा हो गया था, जहाँ एक खुली जगह पर बड़े बड़े तिकोने और चौकोर पत्थर गिरे पड़े थे। जकूटा कहने लगा, ये जगह बिल्कुल ठीक है, अब तुम लोग यहाँ बैठो, मैं जाकर पता करता हूँ यहाँ से सामरी का महल किस तरफ है और इस तरफ कौन सा रास्ता जाता है। ये भी मालूम करता हूँ कि आगे अगर खतरा है तो किस किस्म का खतरा है। जब तक मैं ना आऊँ तुम लोग इसी गार में रहना, गार से हरगिज बाहर ना निकलना। उमरू बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जकूटा ने कहा, फिर वही बात करते हो, मैंने कहा ना, तीनों का मुसीबत में फंस जाने से बेहतर है कि एक शख्स मुसीबत में फंसे, कम से कम बाकी दो इसकी मदद को तो पहुंच सकेंगे। यामाक सांप ने कहा, मगर तुम अगर मुसीबत में फंस गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम पर कोई मुसीबत नाजिल हो गई है। जकूटा ने अपने सर के बालों में से एक बाल तोड़कर यामाक सांप को दिया और बोला, अगर इस बाल में से धुआं उठने लग जाए तो समझ जाना मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, फिर तुम मेरी मदद को आ जाना। मैं इस टीले से शुमाल की तरफ जो ऊंचे पहाड़ हैं इस तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि सामरी का महल इन पहाड़ों के दूसरी तरफ होगा। यामाक सांप ने बाल सामने एक पत्थर पर रख दिया। उमरो यार ने जकूटा से कहा, मेरा जादू का डंडा लेते जाओ, रास्ते में कोई चुड़ैल या बदरूह मिल गई तो तुम्हारे काम आएगा। जकूटा बोला, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, खुदा हाफिज। इतना कहकर जकूटा गार से बाहर निकल गया। वो यामाक सांप और उमरो यार की तरह अभी गैबी हालत में था, यानी वो सब कुछ देख सकता था मगर इसे कोई नहीं देख सकता था। गार से बाहर आते ही जकूटा ने अपने सीने पर दोनों हाथ मारकर पूरी जोर से नारा लगाया, ज़ैबिनॉफ।